اور اسی کوشش کے سلسلے میں آج ہم حلقہ اسمبلی چندران گٹے میں 10,000 راشن کے کٹس کی تقسیم کے سلسلے میں ہماری جانب سے مقامی اراکین بلدیہ جو 7 ڈویژنز ہمارے پاس ہیں ان 7 اراکین بلدیہ کے پاس ہم بھیج رہے ہیں اور وہاں پہ صدور و معتمدین و سرگرم کارکنوں کے ساتھ اراکین بلدیہ یہ 10,000 راشن کے کٹس عوام میں تقسیم کریں گے تاکہ عید کے موقع پر کسی گھر میں بھی کوئی بھی بھوکے نہ رہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے کل بھی قریب 5,000 راشن کے کٹس کی اجرائی یہاں سے ہم نے کی ہے، جس میں حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے لیے 2,000 کٹس یہاں سے بھیجے گئے ہیں اور وہاں کے اراکین بلدیہ سرگرم کارکن صدور و معتمدین اور متعلقہ رکن اسمبلی کی نگرانی میں وہ 2,000 کٹس کی تقسیم کا سلسلہ شاید آج سے شروع ہو چکا ہے اور وہ ہوگا، اور مسلسل کام ہو رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین و سرگرم کارکنوں کی جانب سے ان کے کام میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں بھی تعاون کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے کی کڑی تھی جو کل بہادر پورے میں ہم بھیجے، اور پھر یاقوت پورے کے لیے بھی ہم نے قریب 1,000 کے قریب شاید وہاں پر بھی ہم نے روانہ کیے ہیں۔ احمد پاشا قادری صاحب آئے تھے اور دوسرے اراکین بلدیہ بھی وہاں کے آئے تھے، ان کے ذریعے ہم نے یہاں سے اجرا کیا، اور پھر راجندر نگر کے لیے بھی ہم دیے ہیں، جو حسن نگر اور امیر مومن صاحب کی پہاڑی اور 9 نمبر کشن باغ، یہ ان علاقوں میں تقسیم کے لیے بھی ہم نے وہاں پر بھی رحمت صاحب کو روانہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم مسلسل بھیجتے رہے ہیں راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں، اور یہاں پر بھی بھیجے ہیں، اور پھر سکندرآباد کے علاقوں میں اور مقت مزار سکندرآباد اور پھر کارخانہ بیگم پیٹ ان علاقوں میں بھی بھیجنے کے لیے ہم نے روانہ کیے، اور پھر بنجارہ ہل کے مختلف علاقوں میں بھی بھیجنے کے لیے ہم وہاں پر بھی کچھ راشن کے کٹس قریب 1,000 کے اوپر روانہ کیے ہیں۔ انشاءاللہ آج جناب وہاب صاحب، فہد بن عباس صاحب اور جناب حیدر صاحب اور دوسرے سلیم صاحب اور ہمارے ابتدائی بنجارہ ہل کے جو لوگ ہیں وہ لوگ آج رات میں انشاءاللہ اس کو بھی تقسیم کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا کئی مقامات پہ، تو الحمدللہ میں کہوں گا کہ 1 لاکھ کے قریب تیاری ہوئی تھی، اور الحمدللہ 1 لاکھ کے قریب اناج کی پیکٹس کی تقسیم بھی انشاءاللہ آج کل پرسوں 1-2 دن میں شاید 1 لاکھ کی تقسیم بھی مکمل ہو جائے گی، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے صرف حلقہ جات میں اسمبلی یا بلدیہ حلقوں میں ہم نے تقسیم نہیں کی، بلکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ دینی مدارسوں کو بھی ہم نے اپنا تعاون دیا ہے، اور کئی مائیگرینٹ ورکرز جو اتر پردیش، بہار یا پھر جھارکھنڈ یا مہاراشٹرا سے آئے ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ہم حفاظ جو مساجد کے ہیں ان کا بھی ہماری جانب سے تعاون کرنے کا ہم نے اعلان کیا ہے، وہ بھی کریں گے۔ تو بہرحال ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ نے ہم سے کام لیا، اور یہ سمجھ کر ہم نے کام کیا کہ یہ ایک موقع ہے، اس موقع میں جتنا ہو سکتا ہے ہم کو نیکیاں بٹورنے کا موقع ملے گا، ہم کو بٹورنا ہے، اور ہم نے اور میری ٹیم بالخصوص جناب سمد بن عباس صاحب
जनाब नसीर गयास साहब, जनाब फ़हाद बिन अब्दास साहब, जनाब वहाब साहब कॉरपोरेटर, और जनाब सईद साहब और दूसरे मेरे साथ जो यहाँ पे हमारी टीम थी, हम सब ने यही सोचकर काम किया कि फिर ऐसा मौका नहीं आएगा नेकियां बटोरने का और अपनी आखिरत को संवारने का। अल्लाह ने हमको मौका दिया, हमसे काम लिया, हम अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मुझे एक ही बात याद आती है कि मैं बार बार आज से 9 साल पहले मुझ पर हादसा होने के बाद मुझे याद आता था कि नहीं मालूम कि वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है, और हर दिन यही सोचता और यही फिक्र में रहता कि शायद ये काम है अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है। जब ये इमारत बनी तो ये इमारत को देखकर मैं हर वक्त यही समझता रहा कि शायद ये काम है अल्लाह मुझसे लेना चाहता था, इसलिए हयात बख्शी। या फिर दवाखानों की तामीर हो, वैसी हॉस्पिटल की तामीर हो या असरा की तामीर हो, तो इन तामीरात, इन इमारतों को देखकर समझता था कि शायद ये काम है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे हयात दी। बहरहाल हर रोज़ महाराष्ट्र, बम्बई जब गया तो वहाँ पर भी सोचता था कि शायद ये काम है इसके लिए अल्लाह ने हयात दी। और आज 5 करोड़ से ज़ायद सरफे के ज़रिए भूखों का जो काम अल्लाह ने मुझसे लिया है, भूखों तक अनाज पहुँचाने का, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये भी एक काम था जिसके लिए अल्लाह ने मुझे हयात बख्शी है। तो मैं सारे उन लोगों का ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने आज से 9 साल पहले मेरे हयात के लिए दुआएं की थीं, रोज़े रखे थे, अल्लाह के घर का तवाफ़ किया था और अल्लाह से मेरी हयात के लिए दुआ मांगी थी। मैं क़र्ज़दार हूँ उन सब लोगों का, और अल्लाह ने मुझे मौका दिया इस क़र्ज़ को उतारने का नहीं, बल्कि कहूँगा कि इस क़र्ज़ को अदा करने का एक मौका दिया है मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी ज़ात से जितना मुमकिन है कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी ज़रूर एक हकीकत है कि इतना करने के बाद भी मैं कहूँगा कि हमने कम किया है, और बहुत से लोग भूखे हैं और बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जिन तक हम नहीं पहुँच सके। लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं और करते रहे हैं, हमारी ज़ात से जितना मुमकिन है हम करेंगे। बहरहाल मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह से और आवाम से भी मैं अपील करता हूँ कि अगर ये जो हमने काम किया है इसके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे। दुआ करिए कि अल्लाह ये जो हमने काम किया है इस काम का अजर अज़ीम सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा की और फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे कारकुन, वो सारे ज़िम्मेदारान, सारे सुदूर व मुतमदीन जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह इन सारों को इसका अजर दे और इन सारों की खबर को अल्लाह नूर से भर दे। और दुआ करिए कि अगर हमारा काम, मेरी माँ बीमार है, बीमार रहती हैं, ज़ईफ़ है, दुआ करिए कि अल्लाह इस काम का अजर मेरी वालिदा को सेहत अता करके करे। दुआ करिए, मैं सबसे कहूँगा कि दुआ करिए कि अल्लाह मेरी औलाद को भी इस काबिल बनाए, बासलाहियत बनाए कि वो भी आगे चलकर नेक बने, अच्छे बने और ज़रूरतमंदों की मुझसे ज़्यादा मदद कर सकें। दुआ करिए कि मेरे साथ जो भी असाब ने काम किया है, अल्लाह इनके परेशानियों को, इनके मुसीबतों को दूर फरमाए। मैं आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल फरमाए, और अल्लाह हमारे साथ जितने भी लोग इस काम में शरीक रहे हैं, अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, इनकी मुसीबतों को दूर फरमाए, इनको, इनकी आल औलाद को, इनके वालिदैन को इस काम का अजर अता फरमाए, इनकी मुसीबतों को दूर फरमा कर, इनकी परेशानियों को दूर फरमा कर। रमज़ान का माह ख़त्म होने पर है, अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह क़र्ज़दारों के क़र्ज़ों को दूर फरमाए, जो बेकसूर महरूस हैं, अल्लाह इनकी रिहाई अमल में लाए।
अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी बच्चियां जो घरों में बैठी हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, अल्लाह इनकी शादियां करवा दे। हमारे नौजवान बच्चे जो इम्तिहानात लिखे हैं, अल्लाह उनके इम्तिहानात में उनको कामयाब करें, और फिर आगे जो लिखेंगे इम्तिहानात, अल्लाह उनको भी उनके इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह इनको सेहत व शिफा अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको रोज़गार अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हम मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमारी गैबी मदद फरमा। हम सबको इस वबा से महफूज रख, इस वबा से महफूज रख, और हमारे घरों में हमारे वालिदैन जो हैं, जिन जिन असाब के माँ बाप हैं, ऐ अल्लाह हम हमारे सरों पर और उनके सरों पर उनके माँ बाप को क़ायम रख। ऐ अल्लाह उनको और हयात बख्शे और उनको सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। हमारे बुज़ुर्गों जो इस हमारे दरमियान में, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनको सेहत व आफ़ियत से रख। हम सबको नेक बना। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने खैर का काम किया है, ऐ अल्लाह इस माह में तो इस खैर के काम को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन जिन लोगों ने अपनी ज़कातें निकाली हैं, उनकी ज़कात को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने बेवाओं की, यतीमों की मदद की है, अल्लाह तो इस मदद को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन जिन असाब ने तेरी मोहब्बत में रोज़ा रखा और फाक़े के आलम में थे, भूख से तड़पते रहे, प्यासे रहे, लेकिन सजदे में इबादत करते रहे, ऐ अल्लाह तो इन रोज़ेदारों के रोज़ों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन रोज़ेदारों ने इबादतें की हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, ऐ अल्लाह तो इनकी नमाज़ों को कबूल फरमा। कुरान जो पढ़े हैं, ऐ अल्लाह तो इनकी कुरान खानी को कबूल फरमा। जिन लोगों ने तराबियों का एहतमाम किया, घरों में रह कर तराबियाँ पढ़ी हैं, अल्लाह उनके तराबियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी हर इबादतों को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम तेरी बारगाह में सजदरेज़ होकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं मौला, तो हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मुसीबतों का ख़ात्मा कर, हमारे परेशानियों को दूर कर। ऐ अल्लाह इस वबा से लड़कर जब हम बाहर निकलेंगे तो और मुसीबतों में घिरे रहेंगे और परेशानियों में रहेंगे मौला, तो उस परेशानियों से भी हमको महफूज रख, उन मुसीबतों से भी हमको महफूज रख। हम सबको नेक बना, एक बना। जिस तरीक़े से हमने रमज़ान में इबादतों का एहतमाम किया, ऐ अल्लाह हमको हिदायत अता फरमा, तौफ़ीक़ अता फरमा कि रमज़ान के बाद भी हम इसी तरीक़े से इबादतों का एहतराम करते रहें, नमाज़ों का एहतमाम करते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें। इसी तरीक़े से हम अपनी ज़िंदगी में इबादतों को शामिल रखें और तुझे राज़ी रखें। ऐ अल्लाह हमको तौफ़ीक़ दे, हमको हिदायत दे, हम सब की खिदमत को कबूल फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर ये लॉकडाउन में जो नरमी करें ना, इसके लिए कुछ मैसेज देंगे सर? लॉकडाउन में जो नरमी दिए हैं, इसके लिए मैं आवाम से यही अपील करूँगा कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए। लॉकडाउन खुल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी, इस वबा का ख़ात्मा हो चुका है। उस वक्त कोई चारा नहीं था सिवाय लॉकडाउन का, अब कोई चारा नहीं है कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलने का। उस वक्त भी बीमारी थी, इस वक्त भी बीमारी है। अपने आप को महफूज रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए, अपने आप को साफ रखिए, पाक रखिए, हाथ धोते रहिए और सैनिटाइजेशन करते रहिए, और बहुत ज़रूरी है तो बाहर निकलिए, और बाहर से जब घर आएंगे तो बाहर के जितने आपके जूते हैं, चप्पल हैं, वो घर के बाहर ही छोड़िए। कपड़ों को भी बाहर घर जाकर फ़ौरन डाल के धोइए उसको, क्योंकि घर में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर कोई एक बाहर जाएगा और फिर वापस घर में आएगा तो वह घर को हो सकता है अपने साथ वो जरासीम को भी लेकर आएगा। तो जितनी हो सकती है एहतियात करिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अब तक हम इस जरासीम से या इस मर्ज से या इस वबा से या इस वायरस से लड़ने में थे, अब उससे ज़्यादा हमको रोज़ाना के
ضروریات اور اپنے زندگی کو جینے کے لیے لڑنا ہے، اور وہ لڑائی بہت سخت ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو اس میں کامیابی دے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اور جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، میں ان سب سے کہوں گا کہ بڑے انڈسٹریز، فیکٹری سب ہے، سب کے لیے آزمائش کا وقت ہے. جتنا ہو سکتا ہے میں سب سے کہوں گا کہ غریبوں کو نوکریوں سے مت نکالیے، نوکریوں پہ رہنے دیجئے. کوئی بات نہیں، تنخواہ اگر گھٹا دیتے ہیں تو تنخواہ کم کر دیجئے، لیکن ان کو نوکریوں سے محروم مت کریے. اگر اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو شاید جو آنے والے کل کا جو چیلنج ہے، جو جینے کے لیے ہم سب کو لڑنا ہے، اس میں ہم کو کچھ کامیابی ملے گی. سب علماؤں کی طرف سے اور سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ خالد سیف رحمانی صاحب کی طرف سے بھی جو اپیل آئی ہے کہ اس رمضان میں سمپلسٹی سے عید منائیں اور عید کی شاپنگ کے اوپر پابندی کریے بول کے بولے. میں بالکل ضرور میں عوام سے اپیل کروں گا کہ عید کو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں سادگی سے کے ساتھ منائیں، اور علماء کرام نے جو اپیل کی ہے اس اپیل کی میں تائید کرتا ہوں، اور علماء کرام نے جو ضروری ہدایتیں دی ہیں اس پہ عمل کرنے کی میں آپ تمام سے اپیل کروں گا، کیونکہ یہ وقت بڑا نازک ہے. اور یہ مت سمجھیے خدا کے لیے کہ وقت ختم ہو گیا، لاک ڈاؤن کھل گیا، رات کا کرفیو ہے، دن کا ہے، حالات صحیح ہے. آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے. ابھی بھی کورونا وائرس ہے، اور کورونا وائرس کے ساتھ ہم کو جینا ہے. تو نہیں معلوم کیسا ہوگا. سردی اور کورونا وائرس کا سامنا ہوا، گرمی اور کورونا وائرس کا بھی سامنا ہوا، اب بارش اور کورونا وائرس کا سامنا ہونے والا ہے. تو نہیں معلوم یہ کیسا ہوگا. تو بہرحال ہم کو احتیاط کرنا ہے، اور میں سب سے کہوں گا کہ حالات خراب ہے. جو بھی جتنا بھی پیسہ بچا سکتا ہے اس کو بچانا چاہیے. اگر کوئی کام اس کا پہلے 1 روپے میں نکلتا تھا، اب اگر 90 پیسے میں نکل رہا ہے، 10 پیسے بھی بچتے ہیں تو 10 پیسے کی بھی اہمیت ہے. خدا کے لیے سمجھیے اس بات کو. ملک اور دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے. ہر انڈسٹریز پریشانی کا شکار ہے، ہر کوئی پریشانی کا شکار ہے. جو بڑا ہے اس کو بڑے پریشانیاں ہیں، جو چھوٹا ہے اس کو چھوٹی پریشانیاں ہیں، لیکن ہر انسان پریشانیوں کے شکار ہے. تو خدا کے لیے کفایت شاری کے ساتھ پیسے کو بچائیے. ایک ایک پیسے کو بچاتے ہوئے کم سے کم خرچے میں اپنی زندگی کو گزارنا سیکھیے، اور لوازمات اور خرچے اور بیجا صرفے سے پرہیز کریے. ایک دوسرے کی مدد کریے، پڑوسیوں کی مدد کیجیے. اور علماء کرام نے جو اپیل کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ علماء نے جو ہدایتیں دی ہیں اس پر عمل کریے. سر یہ مودی گورنمنٹ جو ہے 20 لاکھ کروڑ روپے کا پیکیج کا اعلان کری. ملک میں 12 سے 15 کروڑ لوگ جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان پلان اور ان پریسیڈنٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے. امریکہ اور دوسرے ممالک میں بے روزگاروں کو بھتہ مل رہا، لیکن یہاں پہ بے روزگاروں اور اسمال انڈسٹریز کو کچھ نہیں مل رہا. تو یہ پیکیج کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور آپ کی طرف سے حکومت کیا سجیشنس؟ دیکھیے صاحب، حکومت کا یہ پیکیج مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے. صرف کاغذ پر ہے اور زبانی جمع خرچ نظر آتا ہے. عملی طور سے اس پہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور حکومت یہ بول رہی ہے کہ قرض لیو. سب قرض لینے کے بجائے آپ کیا دیتے ہیں وہ بتائیے. نہیں، بول رہے ہیں کہ قرض لو. اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میرے سے پوچھے تو میں تو اتنا قابل نہیں ہوں کہ اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنی چھوٹی اسمال سکیل انڈسٹریز ہیں یا میڈیم کے انڈسٹریز ہیں، اگر حکومت اگر کچھ مدد کر سکتی ہے تو کم از کم 5 مہینے کے واسطے جو ان کا پاور بل ہے وہ معاف کر دیجئے. اگر ان کے اوپر لونز ہیں تو ان کے EMI کو ہالیڈے دے دیجئے آپ. اگر ان کو واٹر سپلائی ہے تو وہ واٹر سپلائی 5 مہینے تک فری کر دیجئے. اور ان کو ٹیکس بینیفٹس دیجئے کہ آپ یہ 5 مہینے میں جو بھی کاروبار کریں گے اس پر جو ٹیکس کا جو سلیبز ہے اس کو آپ کم کر دیجئے. ایسی کئی چیزیں اگر کریں گے تو جس کے ذریعے کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. تو یہ تو اعلان صرف کاغذ پہ ہے اور ناکامی ہے. اور جس طریقے سے مائیگریشن ہو رہا ہے، جو لوگ
जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई रक्शे में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई लारी में जा रहा है, भूख प्यास तड़पते हुए लोग भाग रहे हैं, तो ये हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी निशानी है। तो इनके लिए भी हुकूमत ने कुछ भी कोई ऐलान नहीं किया। वापस ये लेबर्स वापस चले जाने के बाद आप उनकी मदद करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सारी सियासी जमातों से मिलकर उनसे मशवरे लें और पूरे रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स और दूसरे मिनिस्टर्स को बुलाकर मीटिंग लें, सबके मशवरे लें और मशवरे लेकर अगर कुछ काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक इकॉनमी को, मईशत को फिर से दोबारा पटरी पर लाने या बहाल करने में किसी हद तक कामयाबी हमको मिलेगी। लेकिन ये मसला सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है, सारी दुनिया का ये हाल है। लेकिन दूसरे ममालिक में जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास वैसे कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। सर मेरा और एक सवाल है, ये लॉकडाउन में रियायतें दिए, ये भी कहा जा रहा है कि 15 दिन के बाद मुकम्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करेंगे ये लोग। तो ये टेस्टिंग को प्राइवेटाइजेशन नहीं करें, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्टिंग है। जब खोल ही दिया जा रहा है तो ये क्या कॉरपोरेट्स और दीगर जो तिब्बी इदारे हैं उनको जो है इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि टेस्टिंग हो और एक टेस्टिंग बड़े पैमाने पे हो? नहीं, ये टेस्टिंग की इजाज़त देनी चाहिए। और आपने जो सवालात जो उठाए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे ही सवालात हाई कोर्ट के जज ने भी उठाए और हुकूमत से जवाब भी तलब किया है। तो देखते हैं कि हुकूमत क्या जवाब दाखिल करती है कोर्ट में इन सवालात पर। मगर मैं समझूंगा कि ये ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम टेस्ट करें। और ये भी एक चीज़ हकीकत है जिसको समझना चाहिए कि सारे लोगों का टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम सारे हिंदुस्तान के टेस्ट अगर करना चाहेंगे तो कई बरस लग जाएंगे टेस्ट करने में। तो जितना टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो मुतालबा है कि सारे लोगों का है वो भी सही नहीं है। एक बीच का रास्ता देखकर जितने भी ज़्यादा टेस्ट होते हैं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जितने हॉस्पिटल्स हैं जो इन पेशेंट्स जाएंगे हॉस्पिटल में, जो सर्जरीज़ को जाएंगे, जो पेशेंट्स को एडमिट करेंगे, मैं समझता हूँ कि उनको भी टेस्ट करना प्राइवेट हॉस्पिटल को लाजिम बनाए, ताकि अगर ये लाजिम बना देगी हुकूमत कि जो भी पेशेंट इन पेशेंट आ रहा है, जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, जो भी पेशेंट डिलीवरी के लिए जा रहा है, जो भी पेशेंट क्रिटिकल केयर में जा रहा है, अगर हम उसका कोविड टेस्ट करते हैं तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनके लिए अलग वार्ड्स रखनी चाहिए, गांधी हॉस्पिटल को भेजना चाहिए। और जो नेगेटिव आते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके नेगेटिव आने के बाद ही सर्जरी की जानी चाहिए, नेगेटिव आने के बाद ही सीसीयू में लेना चाहिए या उनको डिलीवरी। क्योंकि हमको हमारे डॉक्टर्स को भी बचाना है। अगर हम एक पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल में ले लेते हैं और हमको नहीं मालूम है और डॉक्टर्स उसको ट्रीट करते हैं तो वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे गौर हुकूमत कर रही होगी। नहीं होगा तो अगर ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से हम ज़रूर ये तजावीज़ रखेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें बताएंगे। क्योंकि एक आरोग्यश्री का जो ट्रीटमेंट था, आरोग्यश्री के पैकेजेस है, अब ये कोविड आने के बाद में किस तरीक़े को एडॉप्ट करके जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं DME की जानिब से, गाइडलाइंस तो बनाए गए हैं, PPEs होना है, ऐसा होना है, ये होना है, वो होना है, लेकिन आरोग्यश्री के रेट्स को रिवाइज नहीं किया गया। वही रेट्स रखेंगे और ये करो बोलेंगे तो फिर हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री के पेशेंट्स को नहीं लेंगे। तो आरोग्यश्री के पेशेंट्स को भी कोविड-19 के बाद में कोविड प्रोफाइल टेस्ट एक इंक्लूड कर उसके लिए भी कुछ एक अमाउंट देना चाहिए और उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाकर कुछ इन्हांसमेंट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैं हुकूमत से इस मीडिया के ज़रिए मुतालबा करूँगा, हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी, कि आप फ़ौरन मीटिंग बुलाइए। जितने भी आरोग्यश्री के जो कार्ड होल्डर्स हैं, जो पेशेंट्स इंतज़ार में हैं, कोविड टेस्ट एक लाजिम करिए और उसके भी पैसे आरोग्यश्री के पैकेज में इंक्लूड करना चाहिए। नहीं तो फिर हॉस्पिटल्स नहीं लेंगे। क्योंकि अब देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो आरोग्यश्री के पेशेंट्स को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अब तो और मौका मिल जाएगा उनको
कि कोविड प्रोफाइल करना है, कोविड का टेस्ट करना है, ये सब करना है, आरोग्यश्री में ये कवर्ड नहीं है, हम नहीं लेते बोल के वापस भेज दें। तो मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जो भी हॉस्पिटल अगर किसी आरोग्यश्री पेशेंट, गरीब पेशेंट को रिफ्यूज़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, एक। और दूसरा ये कि ये कोविड प्रोफाइल के लिए नए इजाफा भी इसमें करना चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साहब, आप प्रेस वालों का भी शुक्रिया आखिर में कि बहुत पूरा 50-60 दिन ये मुकम्मल आपने ताउन किया मेरे साथ, हमारा और हमारे काम को आपने सराहा और अपना वक्त दिया। आप तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारे प्रेस का, सारे मीडिया का। थैंक यू सो मच। चलिए दे देंगे साहब, ये चलिए भेज दीजिए सब। दूर 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 ठहर जाइए, पूरा इधर से इधर तक ये हटा दो। गोरे भाई लाइट चलने दो अभी साहब, आओ जल्दी जल्दी उठाओ। थोड़ा ये बता दें क्या पसंद चलिए चलिए हटाइए।